کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ میں اس وقت موجود ہوں شکارپور میں، خاص طور پہ جو ہماری فش کی منڈی ہے اس میں، اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں مقصود احمد میرانی صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں فش کے، اور یہاں پہ میرے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں حاجی علی بخش میرانی صاحب جو کہ صدر ہیں، اور علی شیر بھائی ہیں، خاص طور پہ یہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں فشز کے، سکھر شکارپور کے سپروائزر ہیں، اور ادھر میرے ساتھ محمد رمضان پٹھان صاحب بیٹھے ہیں، اور میرے ساتھ یہاں پہ بھی ایک گورنمنٹ امپلائر ہیں خاص طور پہ، اور ان سے ملتے ہیں خاص طور پہ مقصود احمد صاحب سے، اور ہمارے جو صدر ہیں یہاں کے علی بخش میرانی صاحب سے، اور ان سے یہ پوچھتے ہیں پہلے کہ ہم حکومت پاکستان کو ٹیکس پے کرتے ہیں، کہ حکومت پاکستان ہمیں کوئی سہولیات ہی دے رہی ہے کہ ٹیکس ہی پے کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت فشز جو ہے نا ایک ایکسپورٹ کوالٹی کی منڈی ہے خاص طور پہ، اور اس وقت جو ہے نا ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ بالکل ہی بیٹھ چکی ہے، اور ہماری معاشی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے ایکسپورٹ پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ہماری دو ہی فصلیں ہیں، خاص طور پہ کاٹن رائس جو ہے نا ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی رائس کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ بہت سارا نقصان ہوا، اس حوالے سے مہنگائی کے تناسب کے حوالے سے، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا یہاں پہ تیسرا ٹرنور جا رہا ہے اس حوالے سے کہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں نہیں ہوئے، روڈز، ہیلتھ کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، اس حوالے سے آئیے ان سب لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام سر، کیا حال ہے سر؟ دعا اللہ کرم۔ سر آپ یہاں پہ فشز کا کام کر رہے ہیں، کافی عرصے سے کر رہے ہیں، آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور خاص طور پہ مجھے پتہ چلا کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اس وقت سے لے کے بہت سارے مسائل آپ کو درپیش ہے۔ فش بیسکلی ایکسپورٹ ہوتی ہے، ایکسپورٹ سے ہی ہماری جو ہے نا معاشی حالت جو ہے نا وہ سدھرے گی، خاص طور پہ جب تک ڈالر جو ہے نا ہمارے پاکستان میں موو نہیں کرے گا، آئے گا نہیں، اس وقت تک ہماری معاشی حالت، کیونکہ ہم ڈالر کے حساب سے ہی کام کرتے ہیں، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے۔ اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہاں سے ہم اگر امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں جس طرح 176-77 روپے کے اس وقت ڈالر جا رہا ہے، ہمیں 177 روپے 1 روپے کی بجائے دینا پڑتا ہے، اور وہاں سے اگر 1 ڈالر آئے گا تو ہماری قیمت 177 روپے جو ہے نا وہ بڑھے گی، انکریز ہوگی۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کے حکومت سندھ کو، حکومت پاکستان کو، خاص طور پہ یہ وفاق کا ادارہ ہے جو فشز والا ایکسپورٹ کا، اس میں سندھ تو آپ صوبے تو آزاد ہے 18ویں ترمیم کے بعد جو کچھ مرضی کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہے، کیا کہیں گے اس جس بھی چیز کا بزنس چل رہا ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ دھیان دے، جو بھی بزنس والے ہیں انہوں کو تھوڑا ریلیف دیں تو یہ اب کام آگے بڑھے گا، وہ اس کا حکومت کو فائدہ ہے، حکومت کو بجٹ میں اضافہ ہوگا۔ یہی اچھی باتیں ہیں جو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کاروبار والے کو ساتھ دیں انشاءاللہ۔ کاروبار والے کو تو ساتھ دیں گے نا، لیکن مسائل کے اوپر مسائل گورنمنٹ کو حل کرنے چاہیے۔ سعودیہ کا جو کاروبار بند ہوا ہے 2019 سے لے کر، اصل میں جو جہاں کے کچھ ایٹمس تھے ملی کے، سنگاڑے کے، وہ جاتے تھے سعودیہ ڈائریکٹلی۔ ابھی یہ 19 سے لے کر جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے وہ کاروبار سعودیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ختم کر دیا۔ ابھی انہوں نے دیا ہے دبئی کو۔ یہ یہاں سے مال ہمارا جو جاتا ہے نا، یہ سیدھا جاتا ہے دبئی سے، وہاں سے میڈ ان بنگلہ دیش، میڈ ان تھائی لینڈ، میڈ ان انڈیا مونوگرام لگا کے وہ صاحب وہی سعودیہ جا رہا ہے۔ ہمارا پاکستان کا، ہمارا یہ ہمارے پاس جو مچھلی ہے یہ میٹھے پانی والی مچھلی ہے، میٹھے پانی والی کی ایشیا میں بڑے سے بڑی منڈی ہے سکھر کی، دوسرے نمبر پہ شکارپور کی۔ یہ شکارپور منڈی کا جو مال جاتا تھا نا کمپنیوں، کراچی کمپنیوں کو، وہ کمپنی والے ابھی نہیں اٹھا رہے ہیں، 6,000 سے 10,000 روپیہ فی 40 کلو کے اوپر وہ کم دے رہے ہیں ریٹ۔ وہ مر تو بیچارہ وہ فارمر گیا جو مچھلی پالتا ہے، جو نکالتا ہے، جو مارتا ہے، لے کے ادھر جاتا ہے، وہ کمپنیاں ابھی بند ہیں، وہ کام نہیں چل رہا ہے۔ یہ برائے مہربانی ان کے اوپر گورنمنٹ کو توجہ دینا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ویسے ایک بندہ جو کام کرتا ہے یہاں کراچی کا یا پورے یہ افغانستان مچھلی جا رہی ہے، تاجکستان جا رہی ہے، ازبکستان جا رہی ہے، یہ جو بارڈر ہیں نا افغانستان کے بارڈر، یہ یہاں سے مال 10 گاڑیاں لوڈ ہو کر جب جاتی ہیں بارڈر پہ ادھر کھڑی کر دیتے ہیں، 10 دن 8 دن، مچھلی کم سے کم 48 گھنٹے کے بعد خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ادھر پتہ ہی نہیں گورنمنٹ کو، تو یہ ہمارا بارڈر کھلا ہوا ہے، کس کے ساتھ سائن ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے نہیں ہے۔ وہ 8 دن جب وہ کھڑی ہوگی ادھر، مال کھڑا ہوگا تو وہ مال پیچھے ایک بندے کا خراب ہو جائے گا تو پیچھے بندہ کیا کرے گا؟ گھر بیچے گا، خودکشی کر لے گا، اور کیا کر لے گا؟ ایک یہ بات، ایک سعودیہ والا مال جو وہ بند کیا ہوا ہے،
वो भी इधर फार्मर को एज ए बिजनेसमैन को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और ये पॉलिसियाँ अपनी दुरुस्त कर लें, पॉलिसियाँ इनके पास है ही नहीं, इनके विल पावर है ही नहीं। इसके पास गवर्नमेंट के पास विल पावर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली होनी अली शेर भाई, हर बंदे ने कहा था जी कि हमने नून लीग को आजमा लिया, पीपल्स पार्टी को आजमा लिया, जरदारी साहब को आजमा लिया, अब नया बंदा आया बहुत ईमानदार है, अब इसको भी आजमाना चाहिए, ठीक है ना। जो आजमाने के लिए आ गया, इलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसमें हर बंदा कोई इलेक्ट कर रहा है, कोई सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन जो है ना, खास तौर पे ये चौथा साल उनका जा रहा है, इन्होंने आके आवाम के लिए एक अजाब भी बन चुकी है ये हुकूमत। भाई मेरे इलेक्टेड सिलेक्टेड, हमारा ये आवाम का मसला नहीं है। ये ड्राइंग रूम में जो बैठे हुए हैं वो करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी तो पहले पाकिस्तान के ऊपर ये हो रहा था अपना कर रहे थे, क्या कहते हैं इसको, अभी इनको उन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया। पहले टेस्ट हो रही थी, टेस्ट कर कर करके जरदारी को टेस्ट किया, नवाज शरीफ को टेस्ट किया, अभी इन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। अली शेर भाई, पिछले दिनों नारा लगा था पंजाब में, खास तौर पे आपने सुना भाई, नवाज शरीफ ने अगर कुछ खाया है तो कुछ लगाया भी है। तो ये पॉलिसी तो खैर चल ही रही थी हमारी, तो खान साहब ने लगाने की बजाय खाया ही खाया है। सबसे ज्यादा करप्शन तो इस हुकूमत में हुई है। भाई हमारे पास इतने करप्शन के सबूत नहीं, हम करप्शन के ऊपर बात नहीं कर सकते। मसला ये है कि इन्होंने बंदों को आवाम को ज़मीन में 10 फुट नीचे गाड़ दिया है। ये आवाम की पॉलिसी है ही नहीं। ठीक है, वो कहते हैं कि ईमानदार है, लेकिन इनके पास विल पावर नहीं है, इनके पास टीम नहीं है, वर्क नहीं है। ये नारे लगा के आया, वो नारों में लोटेइज्म वाली है ना जी। जी अली भाई, टीम तो सारी पीपल्स पार्टी से कोई आया हुआ है, कोई नून लीग से आया हुआ है, जो कोई भी किधर किया, से आए हुए हैं सारे। जो भी किया उन्होंने किया, जिसने किया ये वो उसको हमारा भोगना पड़ेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अवाम की, डायरेक्टली अवाम की। अवाम जो एज ए ये जो लोग बैठे हुए हैं सारा मछली से वाबस्ता हैं। एक बंदा काम कर रहा है, मछली का एक बंदा, उसके पीछे 15 से 20 बंदे उसके पीछे काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। एक बंदे का काम बैठ गया, समझो कि 20 बंदों के एक बंदा कमाता है, 10 का चूल्हा जलता है। शेर भाई, मछली तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। इसको प्रमोट नहीं किया गया, प्रमोट नहीं किया, इसको इंडस्ट्री का लेवल ही नहीं दिया गया। पाकिस्तान ने इसको देखा ही नहीं। ये सूबाई नहीं है, ये सूबाई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। ये वफाक का है, एक्सपोर्ट वफाक के नीचे आती है, एक्सपोर्ट वफाक का है। ये एक्सपोर्ट होगी तो हमारा मुल्क का कुछ अच्छा होगा। एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। एक्सपोर्ट अब इन्होंने किसके हाथ में दे दिए, किसके ये एजेंटों के हाथ में दे दिए, क्या है पता नहीं। ये बड़ा मसला है, बड़े में बड़ा मसला है। ये पाकिस्तान की जो मछली जा रही है कराची कंपनियों में, वो कंपनी वाला एज ए मेड इन इंडिया, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन थाईलैंड करके वही सऊदी में बेच रहे हैं, लेकिन एज ए मेड इन पाकिस्तान नहीं बेच रहे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, 19 में खत्म किया है। इस गवर्नमेंट ने आते ही 18 में आई है, 19 में ये पहला काम ये किया। सऊदी वाला इसके ऊपर नाराज हो गया, पता नहीं क्या था, उन्होंने खत्म कर दिया। इसने अभी तक इसराइल वाले बीच में मामलात होते हैं, असल में ये ऊपर सतह के मामलात होते हैं, ऊपर सतह के मामलात है। हमारे इसराइल को हम लोग तस्लीम नहीं कर रहे ना, इस वजह से हमारे सऊदी के साथ तल्लुकात बीच में मुतासर हुए हैं। तो ये अवाम की मकसद ये है कि अवाम का कसूर क्या है, सही बात है। ये बताया जाए कि अवाम का कसूर क्या है, अवाम क्या करे। बिल्कुल ऐसे। ये टेस्टें कब तक चलेंगी। मकसूद साहब, आप माशाल्लाह फाइलन हैं, टैक्स पे करते हैं हुकूमत पाकिस्तान को। क्या हुकूमत पाकिस्तान उसके अगेंस्ट आपको कुछ सहूलियात ही दे रही हैं कि सिर्फ हम टैक्स ही देते जा रहे हैं? मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होगी तो चलती रहेगी, वो तो नहीं सर, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी? अब मैंने आपको ये कहा है कि कुछ टैक्स आप दे रहे हैं, माशाल्लाह फाइलर हैं, सहूलियात तो आपको बुनियादी तौर पे देनी चाहिए जो यहाँ पे नजर नहीं आती। ठीक है, हमारा एक बच्चा टॉफी भी खाता है, हम लोग उस पर भी टैक्स देते हैं। ठीक है, वो टैक्स के पैसे इनके मराद पे जा रहे हैं कि हमारे ऊपर भी कुछ आ रहा है बॉस? हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट जो होगा उनका अपना, हमारी ये इधर की डिमांड है, इधर लोगों की ये डिमांड है कि फिशरीज को इंडस्ट्री लिहाज किया जाए, इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। अभी तक वो नहीं है। ये इनको पता भी है कि मीठे पानी की मछली का एशिया में फर्स्ट नंबर पे सक्कर मंडी है, सेकंड नंबर पे शिकारपुर मंडी है। ठीक है ना, ये इनको पता ही नहीं है।
तो हमारे पास हमारे यहाँ सखर में सबसे बड़े लीडर जनाब खुर्शीद शाह साहब बैठे हैं, जो कि ओपोजिशन लीडर भी रहे हैं माशाल्लाह, हमेशा वहाँ पे रहे हैं। वहाँ पे डाइस पे खड़े होकर नासिर हुसैन शाह साहब वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे डाइस पे खड़े होकर आवाज़ क्यों नहीं उठाते, उसकी क्या वजह है? शाह साहब 2 साल अंदर रह के आए, उनके बेटे को नैब की जद में दे गया कि इंतकामी कार्रवाई हुई, ये सारा कुछ हुआ, लेकिन है कि ये चीज़ें प्रमोट करने के लिए उस इलाके के बंदे को आवाज़ उठानी चाहिए, वहाँ डाइस पे खड़े होकर। हम इस तो पार्लियामेंट हाउस में वहाँ पे बैठे खुर्शीद हैं। शाह, नासिर हुसैन शाह को हम कसूरवार नहीं समझते। सर मैं कसूर की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए कि ये जो था ना, ये उस टाइम चल रहा था, ये सऊदीया के साथ हमारा काम चल रहा था। खुर्शीद शाह का था, नवाज शरीफ के दौर में ये सऊदीया के साथ हमारा काम चल रहा था। अभी इनकी गवर्नमेंट आते ही ये आपका मतलब इंतकामी कार्रवाई हुई है। इंतकामी कार्रवाई हुई ना, सही। ये काम हमारा बंद हुआ है। ये 19 में, 18 में ये आए, 19 में हमारा ये काम बंद हुआ है, सही। जिसके ऊपर हमारे को 40 किलो, 1 किलो के ऊपर 150 रुपये से लेकर 200 रुपया हमारा नुकसान हो रहा है। सही। हमारा कारोबार जो बिजनेस था ना, वो बिठा दिया है, जमीन पे बिठा दिया है। ये हम सऊदी से कारोबार करते थे, फ्रेश मछली बेचते थे, हम वहां से पैसे लाते थे, रियाल लाते थे इधर, यानी कि एक्सपोर्ट हमारी बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी लेकिन थी। ये पॉलिसी खराब होने की वजह से एक्सपोर्ट बंद। पीछे, इसके पीछे ये देखो, एक बंदा मच्छी उठा रहा है, उसके 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे उसके पीछे मारने वाले, पालने वाले, जो उसकी रखभाल करने वाले, चौकीदारी करने वाले, कितने 100 बंदा हो जाता है एक मछली के पीछे। ये सबको इन्होंने बिठा दिया है। ये कहता है मैं 1 करोड़ वो नौकरियों का वादा शादा वो सारा खत्म हो गया, ऊपर से बेरोजगारी होने शुरू हो गई। खत्म कर दिया ना। जब एक चीज पालता है, 12 महीने एक चीज पालता है, संभालता है, वो मंडी में ले जाए, वो मंडी में उसको रेट नहीं मिलेगा तो किसको पूरी करेगा वो सारे बंदे हो जाएंगे ना। पठान साहब क्या हाल है आपके? ठीक हैं। सबसे पहले बात यह है कि इस वक्त जो महंगाई का तनासब बहुत ज़्यादा हो चुका है, ख़ास तौर पे खान साहब की हुकूमत आई है, ये मैं नहीं कह रहा, अवाम कह रही है, ठीक है ना, कि मुख्तलिफ मार्केट्स में हमने इंटरव्यू पे, ख़ास तौर पे इसमें हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह ये थी कि वो सैलरी पर्सन है, उन्होंने अपना किचन का जो खर्चा था वो देना था 10,000 या 15,000, सैलरी तो इंक्रीज़ नहीं हुई, कारोबार तो बड़े नहीं है, कारोबार कम ही हुए हैं, तो वो बड़ी परेशान हुई। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये सारा काम आवाम के सामने है। नहीं, आवाम के सामने आपकी नज़र में इसको क्या कहेंगे आप? बड़ा नुकसान हो रहा है आवाम का, हद से ज़्यादा। मछली वालों का तो एक बंदा अगर मछली फार्म है, उसके ऊपर चौकीदार है, बीज डालते हैं, उसको पालते हैं, 12 महीना उसके ऊपर उसका नजर रखते हैं, गुजारा करेंगे। वो आगे मार्केट में 6,000 से लेकर 8,000 नुकसान कर रही है, तो उसका तो नुकसान हो रहा है ना ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, नुकसान तो हो रहा है ना, महंगाई के वजह से। देखे ना, नवाज शरीफ के दौर में घी 140 रुपए, 45 रुपए, 150 में बिकता था। अब वही घी जो है ना 350, 400 रुपए तक चला गया। चीनी कहाँ से चली गई, आटा कहाँ से चला गया, ये है रोजमर्रा की। नवाज शरीफ के दौर में और इस पार्टी के दौर में बहुत लोग इससे बहुत खुश थे, इससे पहले बहुत खुश थे। ये खान साहब के कहने से बहुत नुकसान हुआ है, पूरे पाकिस्तान का। ये नहीं कि सिर्फ मछली वालों का हुआ है, पूरी हर कारोबार में नुकसान हुआ है। आप इधर आ जाएं थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल सकते हैं सिंधी में। ये यहाँ के फिशर्स के सदर हैं हाजी अली बख्श मिरानी साहब, इनसे पूछते हैं कि इस बारे में कि इस वक्त हालात किस तरह चल रहे हैं। ख़ास तौर पर हालात कुछ भी नहीं है, समझा, हालात कुछ भी कोने को, सफ़ा ख़राब थी वियो आहे। जॾहिं खां वठी खान साहब आयो आहे त हे सॼे पाकिस्तान जो बेड़ा गर्क करे छॾिया अथसि। सॼा जेको बि अवाम आहे इन खां बेज़ार आहे। असां सां हिन वॾो इहो जेको मच्छी जे मथां आहे, इहो बि कारोबार असांजो ख़तमु कराए छॾियो अथसि। सऊदी असांजी मच्छी नथी वञे, ॿुधी साईं। ॿियो इहो त हिते जेको बि आहे हिन ॾाढो ख़राबु करे छॾियो आहे, हर माण्हू हिन खां तंग आहे। तो अब ये तो सर पे है, अभी तो 1 साल पूरा, बल्कि 1.5 साल पूरा रहता है इनका। अगर ये रिज़ाइन नहीं देता, जिस तरह अपोजिशन एहतजाज वगैरह कर रही है, PDM कर रही है, ठीक है ना, मौलाना फजल रहमान की क़यादत में, अगर इसने रिज़ाइन ना दिया, ये ना गया, तो ये 5 साल अगर पूरे कर गया तो हमारे लिए कितना नुकसान होगा? बड़ा नुकसान होगा।
हे वॾो नुक़सानु थींदो जो इहो आहे त वॾो नुक़सानु आहे हिन खे हाणे ई लाहिन हे निकिरे जान छुटी। तो ये अवाम ने इनको सिलेक्ट करके भेजा है कि इलेक्ट हो के ऊपर से आया है? न न ईअं आयो आहे, अवाम हिन खे न चूंडियो आहे, इहे मिड़े हिननि खे तुंहिंजो फ़ौजनि चूंडियो आहे, फ़ौजनि पे आयो आहे कि एतिरा वोट हिन कोन खया। सही। अच्छा सदर साहब, आपसे एक बात आखिरी शेयर करनी कि पीपल्स पार्टी का माशाल्लाह यहाँ पे इंटीरियर में सिंध में ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ कि तीसरा टर्नओवर जा रहा है, यानी कि 14वां साल जा रहा है, 15 साल मुकम्मल हो जाएंगे उनके। क्या तरक्याती काम देख रहे हैं आप, ख़ास तौर पे हेल्थ के बारे में, हॉस्पिटल का निज़ाम कैसा है, एजुकेशन के बारे में वो कैसी है, और ख़ास तौर पे हमारे रोड्स वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह, कितने काम हुआ है यहाँ पे? वॾो कमु करनि था साईं, पीपल्स पार्टी वॾो कमु कयो आहे, सिंध में वॾो कमु थियो आहे। सही। रोड ठहिया आहिनि, रस्ता ठहिया आहिनि, हॉस्पिटल ठहिया आहिनि, सभु शइ ठही आहे। पीपल्स पार्टी वधि में वधि कमु कयो आहे। अञा कमु करणु हुननि खे नथा ॾियनि, जे हुननि खे कमु करणु ॾियनि त अञा वधीक कमु कंदा। सही। मिलानी साहब, आप पीपल्स पार्टी की यहाँ सिंध की हुकूमत से आप मुतमईन नजर हाँ, आते हैं? मुतमिन हूँ। ठीक है, ठीक जा रहे, मुराद अली शाह साहब, ये सारे जितने भी लोग हैं, हमारे मिनिस्टर सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, हमारे जो मेनली इस वक्त अली साइन के हाउस में वहाँ कराची में बड़ा अच्छा लोगों के मसाइल के हवाले से काम कर रहे हैं इस वक्त, और लोग उनसे बड़े खुश नज़र आते हैं। क्या आप इस सिचुएशन में मुतमईन नजर? हाँ, मुतमिन हूँ, असां बिल्कुलु मुतमिन हूँ, कमु भलो करनि था, ये VIP माण्हू भला आहिनि। हाँ। तो क्या आखिर पे सिंध हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हो आप? हाँ, सिंध हुकूमत खे इहो पैगाम ॾियूं था त जेके रहिया खया कम आहिनि उहे बि करायो। सही। ऐं हे जेको असांजो मच्छी जो कारोबार आहे, इन जो बि कुझु वधाइनि। सही। जे न त असांजो हिते जेको आहे वॾो नुक़सानु थिए थो। इहो चऊं था असां पीपल्स पार्टी खे, सिंध हुकूमत खे त असांजे लाइ कुझु करनि। आज सिंधी भाइयों का सकाफत का दिन भी है। हाँ। किस खुशी से आप मना रहे हैं? हाँ, हाँ, सिंधी असां बिल्कुलु मल्हायूं था। अजरक टोपी असांजो शान आहे, असां सिंध जो सकाफ़त आहे, इहा अॼु मल्हायूं था। हाँ। तो आपने किन को कोई पार्टी वगैरह का भी अरेंज किया हुआ है इस हवाले से कि गेट टुगेदर, आपकी भी एसोसिएशन यहाँ पे बनी हुई है? हाँ, हाँ, असां हिते पंहिंजो कयो होसीं हिते। हाँ, मच कचहरी हिते कई अथसि। सही। मच कचहरी थी आहे हिते, असां पंहिंजा वॾा प्रोग्राम कया अथसि। सही। हाँ, इंशाअल्लाह। तो आपका ही है ना जी? हाँ, सिंध असांजी आहे, सिंध असांजी आहे, सिंधियुनि जी आहे सिंध। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, महिरबानी। कैमरामैन जवेद के साथ डॉक्टर नवीद 70।